Welcome dear students. Hope you all will be fine. Today I am here with another unit that is disorders of nervous system. In this unit, disorders of nervous system, we will take meningitis. Meningitis, as a definition, meningitis is the inflammation of meningitis is the inflammation of meninges. As a definition, meningitis होता क्या है? It is the inflammation of meninges. Now, what are the meninges? Meninges are the membranous covering of brain and the spinal cord. So we can say also meningitis is the inflammation of outer covering of brain and the spinal cord. As you know, meninges जो है that are the membranes covering. Meninges consists of three layers, that is dura mater, arachnoid matter and pia matter. These are the three layers of meninges. What are the three layers of meninges? That is dura mater, arachnoid matter and the pia matter. Now, as a definition, you may simply note down as a definition, meningitis is the inflammation of meninges. That is the inflammation of outer covering brain and spinal cord. This is the definition of meningitis. Now the types of meningitis. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है. अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स क्या है. इसके टाइप्स ऑफ meningitis. There are usually three types of meningitis. That is pyogenic meningitis, second one is the aseptic meningitis, and third one is the tuberculous meningitis. Three types of meningitis, that is pyogenic meningitis, second one is the aseptic meningitis and third one is the tuberculous meningitis. Now the first one, what is pyogenic meningitis? जो pyogenic meningitis है, this is caused by bacterial infection, also known as bacterial meningitis. It is also known as bacterial meningitis. Why so? Because जो ये meningitis है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. Another one is the second one, that is the aseptic meningitis. Aseptic meningitis ये वो meningitis होता है जो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है. दैट मीन्स कि जो किसी वायरस से होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस, फंगस, फंगल या पैरासाइट. दैट इज नोन एज द एसेप्टिक meningitis उसको बोलते हैं. थर्ड टाइप इज द tuberculous meningitis. tuberculous meningitis जो है ये किसकी वजह से होता है? It is caused by tubercle bacilli. So the name tuberculous meningitis. These are the three types of meningitis found in children. That is pyogenic meningitis caused by bacterial infections, bacteria की वजह से होता है, also known as bacterial meningitis. एसेप्टिक meningitis ये वो meningitis होता है जो वायरस की वजह से होता है, फंगई की वजह से या पैरासाइट्स की वजह से होता है.
थर्ड वन इज द ट्यूबरकुलस मेनिंजाइट्स। ये वो मेनिंजाइट्स होता है जो ट्यूबरकुल बैसिली से होता है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेनिंजाइट्स। मोस्ट कॉमनली कौन सा मेनिंजाइट्स होता है? दैट इज द पायोजेनिक मेनिंजाइट्स। दैट मीन्स दैट इज caused by bacteria. This is most common type. First one, pyogenic meningitis. Now you will see the clinical manifestations of meningitis. Clinical manifestations. What are the sign and symptoms of meningitis? में कौन से sign and symptoms होते हैं? Firstly जो इसका onset होता है that is sudden. Onset जो इसका होता है that is onset is sudden. That ends with fever, vomiting, irritability, generalized malaise, convulsions, child is having high pitched cry, and also there is alteration in sensorium. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस फर्स्टली हम देखते हैं जो इसका ऑनसेट होता है दैट इज सडन। विद चाइल्ड इज हैविंग फीवर होता है, चाइल्ड में वोमिटिंग होती है, चाइल्ड जो है वो इरिटेबिलिटी आती है, उसमें जनरलाइज्ड मेलेस होता है, कन्वर्जेंस कपकपी होती है चिल्ड्रंस में। एट द टाइम ऑफ क्राइंग चाइल्ड में क्या होती है? हाई पिच्ड क्राई होती है। और अल्ट्रेशन इन सेंसोरियम दैट मीन्स कि सेंसेस में जो इसके सेंसेस होते हैं उसमें अल्ट्रेशन आती है, चेंज आती है उन सेंसेस में। Another symptom is the over the age of 2 years, जब चाइल्ड जो है वो होता है 2 years, उसके बाद जो पेशेंट होता है दैट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। पेशेंट में हेडेक होता है। ऑल्सो मेंटल कंफ्यूजन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, मेंटल कंफ्यूजन एंड नेक रिजिडिटी। ओवर द एज ऑफ 2 years पेशेंट जो है वो क्या करता है? वो कंप्लेन करता है किसके रिलेटेड? पेशेंट में हेडेक होता है, मेंटल कंफ्यूजन्स आते हैं पेशेंट में, और नेक रिजिडिटी होती है। Another symptom is the most common symptom and the most important symptom, that is the Kerning sign. Kerning sign, positive Kerning sign. In addition to this, another important point is that is the positive. These are two positive signs, positive bruising sign. Both are important signs, Kerning sign and bruising. These are the two important signs that are found in meningitis. Now, what is the Kerning sign? Kerning sign होता क्या है? Kerning sign हम किसको बोलते हैं? Kerning sign में क्या किया जाता है? जो पेशेंट है दैट इज उसको क्या किया जाता है? लाई किया जाता है ऑन द टेबल और ऑन द फ्लोर। लाइंग पोजिशन हम सिंपली बोलते हैं, पेशेंट जो है वो लाइंग पोजिशन में होता है। उसके बाद जो पेशेंट है, जब पेशेंट लाइंग पोजिशन में होता है तो जब उसकी नेक को फ्लेक्स किया जाता है और द कर्निंग साइन
जब उसके लेग को फ्लेक्स किया जाता है, थाई को फ्लेक्स किया जाता है ओवर द एब्डोमेन, तो जो ये लेग है ये एक्सटेंड नहीं हो पाती है, दैट इज नोन एज द कर्निंग साइन। सिंपली कर्निंग साइन में क्या होता है, जो पेशेंट है ऑन द लाइंग पोजीशन होता है, तो उसके बाद उसकी लेग को क्या किया जाता है, जो थाई है उसको फ्लेक्स किया जाता है, ओवर द एब्डोमेन के साथ फ्लेक्स किया जाता है, लेकिन जब थाई को फ्लेक्स करते हैं ओवर द एब्डोमेन, तो ये जो ये लेग है ये एक्सटेंड नहीं हो पाती है, दैट इज नोन एज द कर्निंग साइन। दैट मीन्स कि ये जो है पेशेंट को क्या होती है, कंप्लेन होती है, कंप्लेन्स ऑफ पेन एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लेग, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव कर्निंग साइन। जो ये ब्रूजिंग साइन है, ब्रूजिंग साइन में क्या किया जाता है, जो पेशेंट है, चाइल्ड जो है ऑन द लाइंग पोजीशन होता है, जब पेशेंट की के हेड को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, रेज करते हैं पेशेंट को, हेड, पेशेंट की हेड को रेज किया जाता है फ्रॉम द पिलो, तो उस टाइम इमीडिएट फ्लेक्शन आती है बोथ नीज एंड हिप्स में, दैट इज नोन एज द ब्रूजिंग साइन, that is known as the bruising sign. These are the two important signs. These are also important in the diagnosis of meningitis. So remember, कर्निंग साइन में क्या किया जाता है, चाइल्ड जो है उसको लाई किया जाता है ऑन द टेबल, उसके बाद उसकी थाई जो है उसको फ्लेक्स किया जाता है ओवर द एब्डोमेन, जो ये लेग है ये एक्सटेंड नहीं हो पाती है क्योंकि इस टाइम पेशेंट को पेन होती है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव कर्निंग साइन। ब्रूजिंग साइन में क्या किया जाता है, पेशेंट जो है ऑन द लाइन पोजीशन होता है, जब पेशेंट के हेड को, या हम सिंपली बोलते हैं पेशेंट के नेक को रेज किया जाता है फ्रॉम द पिलो से, उसको रेज किया जाता है, तो उस टाइम इमीडिएट फ्लेक्शन आती है, किस में आती है, नीज एंड हिप्स में, दैट इज नोन एज द ब्रूजिंग साइन। दीज आर द टू important positive signs found in the meningitis. these are these are all the clinical manifestations of meningitis. Thank you.